जय बलदेवा जय सोमन जय गौरनिता 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय शिला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण Fantastic Kirtan Prabhuji. Thank you so much, Prabhu. Very good. Fantastic. So, I just want to say something first before Nishant Prabhu begins. So Nishant Prabhu can share his video and then I'll continue saying. And he can mute himself. Yes, his video is on, Prabhu. Is it on? I can't see it. Yeah. I can see him. Why is it? Oh, yeah. Okay. Okay, maybe it's not. Okay. Hare Krishna. So, thank you everyone for dialing. Now as you can see, and today Nishant Prabhu, aaj Nishant Prabhu class denge. I'm very happy that he's giving class. I've been wanting him to give class for quite some time, even though I've approached him recently. So I just want to say a few things about him before I, let him begin whatever he wants to share with us today. So basically, I've known him for the past couple of years, maybe 2.5 years, perhaps maybe 3, I can't remember exactly, but between 2 to 3 years I've known him. And ever since I've known him, he's, one quality that I admire about him is his humility and, his level of accepting others, allowing others to basically play some role in his life. It's very important. We know that, we understand from our acharyas, understand from reading Bhagavad Gita and our scriptures and attending these classes that we have to practice devotional life under the guidance of somebody. We hear that theoretically so many times, but on a practical basis, we do not sometimes allow others to play any role in our lives, and that's one quality that I have seen in Nishant Prabhu, that, of course, everybody has some questions, and, we discuss those questions, we we discuss and we try and seek answers. But this is this is a fantastic quality of allowing somebody to play a role in their life, to help them, basically, to allowing somebody to help them, practice bhakti yoga, basically. So I'm very very pleased with that quality. He's very sober, humble person. Both Prabhu and Mataji, it's a fantastic fantastic little family. Mataji also has many qualities, but today the focus is on Prabhuji. So they spend quite a lot of energy in grooming their children, grooming their children, Aviraj, especially, training him in shlokas, and and developing his Krishna consciousness as well.
So it's a fantastic, devotee family, devotee setup that they have going. So I'm very inspired. They are, very inspired to serve Prabhupada's mission. And I'm very grateful, Prabhuji, that you accepted my request and you are here to share something with us today. So thank you. Hare Krishna. Okay. Please unmute yourself. We can't hear you, Prabhu. Okay. We can hear you now. Yeah, yes, now it's fine. Okay. Hare Krishna Prabhu. Yeah, thank you for a great introduction. ये सब जो इन्होंने बोला है, मतलब इतना कुछ है नहीं मेरे में, जस्ट ऐसे ही है, वो बोला उन्होंने जस्ट क्योंकि वो हम्बल हैं और वो इतने ग्रेट हैं. और दूसरी बात, मेरी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है और ना ही मेरी कोई क्वालिफिकेशन है ये क्लास देने की. बट जैसे कि प्रभु ने कहा कि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ये एज अ सर्विस है, टेंपल के लिए सर्विस कर रहे हो, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं उन्हें ना नहीं कह पाया. तो या तो और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. प्रभु जी मुझे पोस्ट बना दोगे? आपने मेरी स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल की हुई है. अभी करता हूँ प्रभु, एक सेकेंड. Done, Prabhu. Thank you, Prabhu. Are you able to see my screen? Yes, Prabhu. Yes. Okay, great. Okay. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ऑलराइट, तो आज का, जैसे आप सबको पता है, आज का टॉपिक है चतुर्मास्य. तो चतुर्मास्य क्या है और इसके आगे क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें. फर्स्ट इज, ये आज का इंट्रो है कि क्या क्या हम करेंगे. व्हाट इज चतुर्मास्य और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ चतुर्मास्य का, क्या स्टोरीज हैं पुराना से, डिफरेंट पुराणास में इसके बारे में वर्णन है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में. हम नेक्स्ट इज हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं, जो भी हम करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे आगे. और फेस्टिवल्स क्या क्या आते हैं चतुर्मास्य में. तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि चतुर्मास्य क्या है. तो ये संस्कृत का वर्ड है, जैसे चतुर्मास. तो चतुर मीन्स चार और मास मीन्स मंथ. तो ये 4 महीने जो हैं, ये इनका क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों आते हैं, ये हम आज जानेंगे. तो ये 4 महीने स्टार्ट होते हैं आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी से. इसको हम देवशयनी एकादशी भी बोलते हैं, जो भी निकली थी लास्ट एकादशी हमारी. तो उसमें देवशयनी एकादशी है, जैसा कि नाम बता रहा है देवशयनी. तो उस समय सब देवता और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा लॉर्ड विष्णु, वो सोते हैं, शयन करते हैं, रेस्ट करते हैं. और ये खत्म कब होता है? कार्तिक की शुक्ल एकादशी पे. उसको बोलते हैं हम उत्थान एकादशी. तो जब वो सब उठते हैं, महाविष्णु जब उठते हैं.
तब वो खत्म होते हैं 4 मास। इसको हम पूर्णिमा से भी लेते हैं कई लोग, तो आषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक। ओके, तो अब है कि क्या हुआ था इस टाइम पे, व्हाट हैपेंड एट दिस टाइम, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि महाविष्णु इन 4 महीनों में योग निद्रा में होते हैं। तो ये क्या है योग निद्रा और क्यों है, उस पर बात करते हैं अभी। तो महाविष्णु, जैसे आपको पता है कि वो उनकी जो सोना और हमारे सोने में बहुत अंतर है। हम जब सोते हैं तो खर्राटे आते हैं, और जब वो सोते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। जब वो अपनी एक सांस छोड़ते हैं सोते हुए, तो कई ब्रह्मांड क्रिएट हो जाते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तो वो सारे ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनिहिलेशन इसको बोलते हैं। तो ये है योग निद्रा महाविष्णु की। तो इसके बारे में एक कहानी है वराह पुराण में। वराह हमें, हम जैसे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वराह अवतार हुए थे, तो उसका एक पुराण है पूरा, तो उसमें एक कहानी है। तो वो जानते हैं कि वहां से इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ था कि चतुर्मास कैसे हुआ। तो वराह पुराण में क्या होता है, भूमि देवी, मदर अर्थ, वो आती हैं लॉर्ड वराह के पास, वराह भगवान के पास, और कहती हैं कि मैं बहुत विचलित हो रही हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि कलयुग में लोगों का दुख और उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है। उनकी आयु कम है, उनको बीमारियां लगती हैं, और वो कमजोर हैं वो लोग। तो प्लीज मुझे कोई ऐसा बताए उपाय कि जिससे उनका उद्धार हो सके, और वो थोड़ी सी एफर्ट से वो वैकुंठ की प्राप्ति कर लें, वो आपको पा लें। तो भगवान वराह मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि जरूर मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने बोला कि 4 महीने जो हैं, जिनको चतुर्मास हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इन 4 महीनों में अगर हम मनुष्य तपस्या करेंगे, ऑस्टेरिटीज करेंगे, उसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या क्या करेंगे, वो सब करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो वो बहुत ही कम समय में मुझे प्राप्त कर लेंगे। फिर उन्होंने आगे कहानी बताई। कहते मैं मेरू पर्वत पे बैठा था, एक बार की बात है, तो वहां पे एक स्त्री आई मेरे पास, काले रंग की स्त्री, उसने सफेद वस्त्र डाले हुए थे। वो मेरे पास आई और आके मेरे चरणों में गिर गई, मुझे प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और उसके साथ बहुत सारे डेमीगॉड्स भी थे, देवी देवता भी थे। और उन्होंने प्रणाम किया, मेरी प्रेयर्स करी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं रात्रि देवी हूं। और लोग अब रात्रि देवी हैं, और इसके बारे में थोड़ा पहले बैकग्राउंड बताता हूँ। हमारे जो पूरा वर्ष होता है 12 महीने, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वो उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण क्या होता है, जिसमें भगवान का दिन होता है, तो उनका एक दिन 12 घंटे हमारे 6 महीने होते हैं। और दक्षिणायन होता है उनकी रात। तो जो रात होती है उसको बहुत इनऑस्पिशियस मानते हैं, तमोगुण में होती है, राइट। तो इसी तरह से ये जो 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ये 6 महीने तमोगुण के माने गए हैं। तो इस वजह से रात्रि को वो अशुभ गिनते थे, वो कहते थे तो यू आर इम्प्योर। और तो उन्होंने कहा कि प्लीज भगवान मेरा कुछ करो, मैं इम्प्योर हूँ और लोग मुझे कोई ऑस्पिशियस काम नहीं करते इन 6 महीनों में, और सब मुझे बुरा भला कहते हैं। तो तब वराहदेव ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हारे ये जो 6 महीने हैं, इसमें हम 4 महीने में वो पूरी रात नहीं सोते हैं देवी देवता और महाविष्णु, वो 4 महीने में अर्ली मॉर्निंग दे वेक अप, तो वो 4 महीने में वो उठ जाते हैं। तो ये जो 4 महीने होंगे, इन 4 महीनों में जो लोग व्रत का और उपवास का पालन करेंगे, उनको मैं अपनी पूरी मर्सी दूंगा। वो पूरे 8 महीने में उतनी मर्सी नहीं मिलेगी जितनी मर्सी मेरी इन 4 महीनों में मेरा नाम लेने पे मिलेगी। तो ये स्टोरी थी वराह पुराण की। अब क्वेश्चन कई बार आता है हमारे कि
क्यों सोते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया, हालांकि उनका सोना, महाविष्णु का सोना हमारा सोने जैसा नहीं है, वो एक जस्ट लीला कर रहे हैं। वो लीला भी क्यों कर रहे हैं कि वो सो रहे हैं, तो अब जब वो जाग रहे होते हैं तो वो काउंट कर रहे होते हैं ना, इसने 16 माला करी, इसको ठीक है इतने क्रेडिट्स मिल गए, इसने 10 करी, इसको इतने क्रेडिट्स मिल गए। तो जब वो सोते हैं तो क्या वो देखते नहीं है? वो कहते हैं जब मैं सो रहा हूँ तो मैं 8 करोगे तो मैं 64 गिनूंगा, तुम 16 करोगे तो मैं 128 गिनूंगा, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैंने आंखें बंद की हुई हैं, बस तुम मेरा नाम ले रहे हो, मैं नहीं काउंट कर रहा और मैं तुम्हें दिए जा रहा हूँ। असीम कृपा अपनी वो दे रहे हैं, पूरी मर्सी है इन 4 महीनों में। हम आगे देखेंगे अभी, और बहुत सारी स्टोरीज हैं और बहुत सारे पुराणों में वर्णन किया हुआ है। तो ऐसी एक और स्टोरी है कि हाँ, कि वो सोते क्यों हैं, तो उसके बारे में एक और स्टोरी है। तो बलि महाराज और भगवान वामन देव की ये स्टोरी हमको सबको पता है कि कैसे भगवान वामन आए थे बलि महाराज के पास और उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी उनसे। तो बलि महाराज जो बहुत ही बड़े दानवीर थे, उन्होंने दी। उन्होंने बोला हाँ 3 पग है, ले लो। एक पग में उन्होंने धरती नाप ली, एक पग में आकाश नाप लिया, और तीसरे पग उन्होंने कहा आप कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने कहा मेरे सिर पे रख लो। तो उन्होंने उनके सिर पे रखा और उनको सुतलोक में भेज दिया। अब सुतलोक क्या है? हमारे ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम हैं, हम आते हैं मिडल में, इसको भूरलोक कहते हैं। भूरलोक से ऊपर 6 लोक हैं और भूरलोक से नीचे 7 लोक हैं। जो नीचे हैं वो है अतल, वितल, सुतल। सुतल में उनको भेजा बलि महाराज को, वो सुतल में चले गए। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 आते हैं नीचे, और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ऊपर आता है हमारा, स्टार्ट होता है सत्यलोक, तपालोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक और भुवरलोक। तो खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इनके। तो कहने की बात यह है कि सुतलोक में उनको भेज दिया, उनको उनका रूलर बना दिया। तो उनके सरेंडर से वामन देव बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि जो तुम चाहते हो बताओ, तुम्हें मैं दूंगा। तो उनको उस पूरा एक लोक का उन्होंने क्या बोलते रूलर तो बना ही दिया। ऑन टॉप ऑफ इट वो बोले बताओ और क्या चाहिए तुम्हें। तो बलि महाराज ने बोला कि मेरे साथ आ जाओ आप भी। तो अब वचन दिया था तो आना था। तो वामन देव विष्णु भगवान उनके साथ सुतलोक में चले गए। वैकुंठ हो गया खाली। तो प्रॉब्लम हो गई। तो फिर क्या हुआ, माता लक्ष्मी ने रक्षाबंधन के दिन वो भी सुतलोक में आ गई और बलि महाराज को अपना भाई बनाया। तो बलि महाराज बहुत खुश कि विष्णु जी तो पहले ही थे, लक्ष्मी जी भी आ गई, बहुत खुश। तो उन्होंने बोला बताओ बहना क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वर वापस कर दो। तो बलि महाराज बड़े उदास हुए। उन्होंने बोला कि पहले तो इतने मैंने सरेंडर किया, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे भगवान की एसोसिएशन मिले, और आप उन्हीं को लेने की बात कर रहे हो। बट जो भी हुआ उसने फिर बाद में विष्णु जी ने कहा कि हर साल 4 महीने मैं तुम्हारे पास आके रहूंगा। तो इन 4 महीनों में वो वैकुंठ में नहीं होते, सुतलोक में होते हैं बलि महाराज जी के साथ। तो ये एक और स्टोरी थी कि काइंड ऑफ, तो उसको योग निद्रा बोल देते हैं या कुछ ये बोल देते हैं कि वो वैकुंठ में नहीं थे। Alright, any questions till this point? Alright, good. तो नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कि ठीक है अब हमें पता चल गया है कि क्या है इसकी कहानी क्या है। अब आते हैं कि इन महीनों में करना क्या चाहिए हमें। तो ये 4 महीने हैं। इसमें पहला मंथ है श्रावण, सावन जिसको हम बोलते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है जुलाई 5 से अगस्त 2 तक। तो इसमें हमें हरे पत्ते की सब्जियां नहीं खानी है। और ये मैंने एक्सेप्शन इसलिए लिखी है कि हमें डाउट होता है कि यार कौन सी हरे पत्ते की है, कौन सी नहीं है, कौन सी खानी है, कौन सी नहीं खानी। तो खासकर लेडीज को जो कुकिंग करती हैं तो उनको डाउट रहता है। तो ये मैं स्लाइड भेज भी दूंगा, अगर नोट करना तो नोट कर लो कि ये सब हम खा सकते हैं। कोरिएंडर लीव्स खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, पुदीना खा सकते हैं, करी लीव्स खा सकते हैं, कैबेज खा सकते हैं।
बट सिर्फ हरे पत्ते वाली जैसे साग हो गया, पालक हो गया, वो नहीं खा सकते। फिर है भाद्र में कर्ड नहीं खा सकते। कर्ड में अगेन हम जो कर्ड नहीं खाना है सच, और जो कर्ड से बनी हुई चीजें जैसे कड़ी हो गई, लस्सी हो गई, बटर मिल्क हो गया, पर चरणामृत ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर दही उसमें डाला है सब्जी में तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ऐसे सॉरी अगेन अश्विन मास में दूध है, दूध नहीं पी सकते, खीर नहीं खा सकते, आइसक्रीम नहीं खा सकते, बट जो प्रोसेस हो जाता है जब दूध वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो खा सकते हैं, जैसे पेड़ा, रसगुल्ला वगैरह। और कार्तिक मास में हम उड़द दाल नहीं खाते। उड़द दाल अब इन तक भी मैं आऊंगा कि क्यों नहीं खाते, इनके साइंटिफिक रीजंस भी हैं और इनके हमें पुराणों में भी दिया गया है कि क्यों नहीं खाते और क्यों खाते हैं या क्या क्या वर्जित है। वो सब साइंटिफिक रीजन तो इजी है कि जैसे हमें पता है कि ये रेनी सीजन स्टार्ट होता है, हर जगह पे बारिश होती है और उससे वर्म्स आते हैं जमीन पे, और जमीन से निकली हुई हरी सब्जियां दे आर नॉट गुड, तो उससे पेट खराब होता है और बीमारियां लगती हैं। ऐसे ही दही भी उस टाइम में नहीं खाते क्योंकि अगेन वही दूध से बना होता है और दूध वही काऊ जो है वो घास खाती है, गंदी घास होती है उस टाइम में, और वो सब कुछ कंटेमिनेटेड होता है बेसिकली इस टाइम पे, इन 4 महीनों में। और उड़द दाल इसलिए नहीं खाते हम कि कोई भी हाई प्रोटीन जिसमें होता है तो उसको हम शास्त्रों में उसको हम मांसाहारी मानते हैं, तो उसको भी हम अवॉइड करते हैं इस महीने में। और अब आप कहोगे कि यार ये क्या लिखा हुआ है, पहले ही कितना कुछ छोड़ रखा है हमने, तो चाय नहीं पी रहे, कॉफी नहीं पी रहे, ऊपर से आप ये और भी आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। तो ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा हुआ है स्कंद पुराण में, श्रावणे रजये शाकम, शाकम इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दधि भाद्रपदे तथा, दधि मीन्स दही, भाद्रपद में दही छोड़ना है, और दुग्धमाम श्वयुजे मासी, कार्तिके चामिष्म तयोजत। तो ये स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है कि ये नहीं ये चारों चीजों को मेंशन किया हुआ है कि ये नहीं खाना है। तो ये कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया हुआ है, पूरा पुराणों से आया हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि क्यों करनी है ये ऑस्टेरिटीज, उसका भी हमें पुराणों में प्रमाण मिलता है। कौन से पुराण में? भविष्य पुराण में दिया हुआ है। यो विना नियमम मृत्यो व्रतम वा जपमेव वा चातुर्मास्यम नयनेन मूर्खो जीवन अपि मृत्यो ही सह। यो बिना नियमम मृत्यो, जो कि मृत्यु मीन्स मनुष्य, मनुष्य को बोलते हैं ना कि जिसकी मृत्यु मीन्स जिसकी मृत्यु होनी है, तो वो मनुष्य है। तो वो लिखा हुआ है कि जो मनुष्य बिना नियम के, बिना व्रत के और बिना जप के चतुर्मास्य में रहता है वो मूर्ख है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भविष्य पुराण कह रहे हैं, वेद व्यास जी महाराज उन्होंने लिखा है। वो कह रहे हैं कि तुम लोग मूर्ख हो अगर तुम लोग जप नहीं कर रहे हो, व्रत नहीं कर रहे हो और नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। कौन से नियम? जो ऊपर दिए गए हैं। और ही नहीं, मूर्ख ही नहीं हो, तुम्हारा जो जीवन है, जीवन अपि मृत्यो ही सह, आपका जो जीवन है वो जिंदा लाश है, मृत व्यक्ति के समान है। ऑलराइट, सॉरी थोड़ा हैवी हो रहा है, बट अब ये जो है एज इट इज पुराणों में जो लिखा है। नेक्स्ट है अगेन, और अब आते हैं कि उनके बेनिफिट्स क्या हैं। वो तो थे कि अगर नहीं करोगे तो क्या है, क्या तुम क्या लोग क्या हो, और अब करोगे और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। अगेन कमिंग बैक टू स्कंद पुराण, वृतानि वैष्णवेनीह मनस्यपि चिकीर्षतः नरस्य क्षमापनोति पापम जन्म शतोदभवम। तो व्रतानी, जो व्रत रखते हैं, जो वैष्णव व्रत रखते हैं, मनस्यपि मन में ही, मन में चिकीर्षतः, चिकीर्षतः मतलब पालन करते हैं। जो वैष्णव अपने मन में ही इसका पालन करते हैं, इस व्रत का, उनके, उन नरों के
पापम जन्म शतो मीन्स 100, तो उनके 100 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। और ये तो वो हैं जो मन में करते हैं, मनस्यपि। और अब आप ये सोचो, अगर हम तन मन धन सब कुछ से करेंगे तो हमें कितना लाभ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। और बेनिफिट्स क्या हैं? एक भक्तो नरा शांतो, जो व्यक्ति शांतो मीन्स सेल्फ कंट्रोल के साथ नित्य स्नायी दृढ़ व्रत, हर रोज स्नान करता है और दृढ़ता से व्रत का पालन करता है। यो अर्चये मासान हरिम स्यातस्य लोक भाग, जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल के साथ हर रोज स्नान करता है और दृढ़ता से अपने व्रत का पालन करता है और अर्चना करता है किसकी? अच्युतम। अच्युतम किसको बोला गया है? भगवान श्री कृष्ण को। अर्चना करता है भगवान श्री कृष्ण की चतुर्मास में, वो हरिम लोका भाग, वो हरि का, भगवान विष्णु का लोक में जाता है। ये एसोसिएट्स विद भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु इन वैकुंठा। ये क्लियरली लिखा गया है। और कितना करना है? कुछ मेजर नहीं है, राइट? भगवान का व्रत का पालन करना है और देन यू विल बी देयर। ऑलराइट, और बेनिफिट्स पे आते हैं। ये भी अगेन सकंद पुराण में है। यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे क्षितिशायी भवेन नरः वार्षिकान चतुरो मासान लभते वैष्णविम गतिम। यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे, अगेन ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है। जब वो सोते हैं, जब श्री कृष्ण इन 4 महीनों में सो रहे हैं, लॉर्ड विष्णु 4 महीनों में सो रहे हैं, उस समय तुम भी सो कहाँ पे? जमीन पे। अगर उन 4 महीनों में आप जमीन पे सोओगे, उन 4 महीनों में चतुर्मास के, तो क्या लभते? व्हाट यू विल गेट? वैष्णविम गतिम। तो भगवान विष्णु के, यहाँ पे कुछ ग्रंथों में गतिम है और कहीं पे मतिम भी है। तो गतिम मतलब आप जाओगे, कहाँ जाओगे? विष्णु भगवान के पास। और मतिम में क्या है कि आपकी जो बुद्धि है, आपकी मति, उसमें कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं लगता है चैंटिंग में, तो वो चैंटिंग में मन भी लगेगा। मति होगी आपकी, वैष्णव मति हो जाएगी। ओके, तो ये तो थे जो हमारे पुराणों में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये करने से ये होगा। अब आते हैं कि जिन लोगों ने ये किया है, उनकी लाइफ स्टोरीज, कि वो कहाँ थे और वो कहाँ पहुंच गए, वो सब करने से जो हमने पीछे कवर किया है। तो सबसे पहले आता है इसमें नारद मुनि और व्यास देव का संवाद। श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 में इसके बारे में लिखा गया है। तो उसमें क्या है, व्यासदेव पूछते हैं नारद मुनि से कि आप कैसे बन गए, मतलब इतने बड़े महर्षि कैसे बने। तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि पिछले लाइफ टाइम में वो क्या थे। वो एक दासी पुत्र थे और उनकी कोई एसोसिएशन नहीं थी, क्योंकि वो दासी पुत्र थे, कोई वैष्णव के साथ कोई एसोसिएशन नहीं थी, कुछ नहीं था। बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ, चतुर्मास स्टार्ट हुआ, वर्षा ऋतु स्टार्ट हुई, श्रावण मास स्टार्ट हुआ और उनके घर सन्यासी आ गए। और इस टाइम में क्या होता है वर्षा ऋतु में के और चतुर्मास में, कि कोई मूव नहीं करता है। सन्यासी भी अपने जगह पे, जहाँ पे वो बैठते हैं, वो वहीं पर ही 4 महीने वहीं रहते हैं। क्यों रहते हैं वहां पे? उसके कई रीजन है। एक तो रीजन है कि हमारे आचार्य क्यों रहते थे एक जगह पे, क्योंकि बारिश होती थी, रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, वो प्रचार के लिए कहीं जा नहीं पाते थे। तो वो क्या करते थे कि एक जगह बैठ के अपना तप करते थे, भगवान का नाम लेते थे। और दूसरा रीजन क्या था, और ये खाली हिंदू में या सनातन धर्म में नहीं है, ये बुद्धिस्ट में भी है और ये जैनियों में भी है। जैनी तो जैसे आपको पता है, जैनी लोग जो होते हैं वो तो अपने मास्क लगा के रखते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनके मुंह में ना चला जाए। और श्रावण मास में तो क्या होता है कि कीड़े मकोड़े निकल रहे होते हैं, तो वो बाहर जाते ही नहीं है कि कहीं उनके ऊपर पैर ना आ जाए।
और रीजन क्या है कि 8 महीने हमारे आचार्य प्रचार कर रहे हैं। किन किन लोगों को प्रचार कर रहे हैं? हमारे जैसे मटेरियलिस्टिक लोगों को। तो कांस्टेंट उनका टच है मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ, और उससे क्या होता है कि चाहे वो बहुत हाई लेवल पे थे, उनको मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं कंटेमिनेट कर सकती, बट स्टिल उनको थोड़ा सा होता था कि यार अब हम 4 महीने अपना बूस्ट कर लें, अपना तप करके, अपना जैसे वो चार्जर लगाते हैं ना मोबाइल का, वो चार्ज कर लें और फिर 8 महीने और दोबारा से पूरी तीव्रता से फिर से प्रचार करें। तो ऐसे ही उनके घर आए, वहां पे स्टार्ट हो गया चतुर्मास, और उनके घर रहने आ गए और उनके साथ बैठना, उनके साथ करना, उनके साथ सब कुछ किया उन्होंने। नारद देव ने कीर्तन किया, उनसे भोग लगाया, उनका प्रसाद ग्रहण किया, उनकी संगति में रहे, साधु संग में रहे। 4 महीने उनके साथ पूरे बिताए और नेक्स्ट लाइफ टाइम में वो महर्षि नारद बन गए। और भी डिटेल में है उसमें, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे उनकी मदर की डेथ हो गई, सांप ने काट लिया उनको, और फिर वो आगे गए जंगलों में, जाते जाते वो फिर गए, वहां पे जाके उनको विष्णु भगवान के दर्शन भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस लाइफ टाइम में यू आर स्टिल नॉट रेडी, तो अगले जन्म में यू विल बिकम महर्षि नारद। तो एक दासी पुत्र से महर्षि नारद बन गए, चतुर्मास में साधु संग करके और जप करके और ऑस्टेरिटीज करके, व्रत करके। दूसरी कथा है चैतन्य महाप्रभु की और वेंकट भट्ट की। तो वेंकट भट्ट बहुत बड़े वैष्णव थे और उन्होंने ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को मंदिर में देखा, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे घर आ जाओ, चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ये चतुर्मास में प्लीज मेरे घर रहो। तो अगेन वही हुआ, उन्होंने वहां पे गए, वहां पे पूरी एसोसिएशन दी, 4 महीने पूरा सब काम काज छोड़कर उन्होंने सिर्फ भगवान का नाम लिया। वेंकट भट्ट के पुत्र थे गोपाल, उस समय छोटे थे, तो उनकी एसोसिएशन के साथ उन 4 महीने जो भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद जो राधा रानी के मूड में थे, आए हुए थे, उनके साथ एसोसिएशन करके वो 6 गोस्वामियों में से एक टॉप के गोस्वामी बने, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो चाहे दासी पुत्र से लेके महर्षि बनना, या एक वैष्णव फैमिली से एक बहुत बड़े गोस्वामी बनना, 6 गोस्वामी बनना, ये सब करता है चतुर्मास। जो चतुर्मास की ऑस्टेरिटीज हैं और जो उनके व्रत हैं, वो ये सब करती हैं। तो ये लाइव एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई डाउट? यस प्रभु जी, 2 क्वेश्चन है। तो ये चैट में आप देखिए, 2 लोग माता जी ने क्वेश्चन पूछे हैं चैट में। ऑलराइट, मेरे को दिख नहीं चैट, 1 मिनट। Yes, Nishant Prabhu. Just to add one more point. Hare Krishna Prabhu, Anand here. Hare Krishna Prabhu. Actually, मैं साउथ इंडियन में साइंस को जानता हूँ, आई मीन देखा हूँ काफी सालों से, कि वो 1-4 महीने सीस भी क्रॉस नहीं करते हैं। Like I used to attend pravachans in during this 4 chaturmas. They used to have extensive pravachans in most of the temples. वहाँ पे तो बोलते थे कि जो points आपने बोला, like this 4 months is dedicated for God service and God devotional services and all, to get back all the good practices back in those 4 months. Best है, holy है in fact. तो वो क्रॉस भी नहीं कर, लाइक ओशंस क्रॉस भी नहीं करते थे, इतना कठिन व्रत में बैठते थे वो। आई वाज एबल टू रिकलेक्ट, दैट्स ऑल आई वांट। वेरी गुड, करेक्ट, थैंक यू प्रभु जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। चैतन्य महाप्रभु भी हर साल चतुर्मास शुरू होने से पहले ही जगन्नाथपुरी पहुंच जाते थे और वहां पे रथ यात्रा करते थे, और 4 महीने वहीं पर ही उन्होंने रथ यात्रा से स्टार्ट होके 4 महीने वहीं पर उन्होंने सारे उत्सव वहीं पे मनाने। अभी फेस्टिवल्स का आगे आएगा कि कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, तो सारे फेस्टिवल्स वो वहां पे मना के फिर वो आगे चलते थे। सुपर प्रभु।
Yeah, right. Thank you Prabhu for sharing. और कुछ है, मेरे को चैट दिख नहीं रही है। प्रभु जी मैं बोल देता हूँ, चैट में जो क्वेश्चन है ना उसमें लिखा है, सीमा माता जी ने लिखा है, यू सेड डोंट स्लीप ऑन फ्लोर बट मैक्सिमम serpents and other insects like rats etc come out of holes, so is that safe to sleep on the floor? हाँ देखो, ये अपनी अपनी निष्ठा और उसके हिसाब से है। अगर आपको वैकुंठ जाना है तो अगर आपको वो चीज करनी है तो ठीक है, करो। और आजकल के घरों में कहाँ आते हैं, वो तो पुराने टाइम पे था कि कोई घर में आजकल तो फैशन है, लोग घर पे गद्दे बिछा के सोते हैं आजकल। तो आजकल के घरों में तो ऐसा कुछ नहीं है। वो पुराने जमाने में था कि हाँ, जब दरवाजे ऐसे नहीं थे तो घर से कुछ आ जाता था, पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। तो तभी ये कलयुग के लिए बनाई गई है। ये जैसे कि मैंने वो वरादेव वाली स्टोरी में बताया कि ये सारी चीजें आपको थोड़े से एंडेवर से अपने बहुत कुछ मिल जाता है, और ये कलयुग के लिए ही एप्लीकेबल है। Okay, thank you Prabhu ji. And can I add one thing here, please? Yep. हाँ जी। से नीचे सोने का मतलब एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जमीन पे सोना, मतलब आप जैसे इंडिया में जो लोग हैं और यहाँ पे भी गद्दा बिछा के नीचे सो सकते हैं, या पतला गद्दा बिछा के वो सो सकते हैं। और अगर किसी के अगर रैट्स वगैरह की ऐसी कोई इशू है तो वो हम किसी दूसरे तरीके से भी उनको डील कर सकते हैं। वो रैट तो अगर हैं भी घर पे तब भी हम चाहे चतुर्मास हो या नहीं हो, हम उनका तो उस चीज का तो हम उपचार कुछ ना कुछ करेंगे ही ना, रिगार्डलेस। चाहे वो चतुर्मास में हमें नीचे सोना है या नहीं सोना है, या आउटसाइड चतुर्मास के जो 4 मंथ के जो 8 जो दूसरे महीने भी हैं जिसमें हम बेड पे सोते हैं, और हमारे घर में अगर रैट भी आ रहे हैं तो हम उसके लिए वो रैट को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ जो भी चीजें होती हैं, जो भी साधन है वो यूज करके चूहों को तो भगाएंगे ही ना। तो वही चीज तो हम तो वो हम इस महीने में भी कर सकते हैं। ये वो चीजें चूहों को पकड़ के उनको दूसरी जगह छोड़ाना, वो सब वो सब चीजें कर सकते हैं। आई वांट टू ऐड प्रभु जी। प्रभु जी, निशांत प्रभु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, इतना हार्ड व्रत का अगर पालन कर रहे हैं तो वो इंसेक्ट्स तो पास में ही नहीं आ सकते हैं फिर। आप क्या कहते हो इस बारे में, है ना? बिल्कुल, ये तो अपनी कॉन्शियस है। हाँ जी, इतना हार्ड व्रत करेंगे, जमीन पे सोएंगे तो ऑब्वियसली हमें कोई इंसेक्ट या कुछ और रैट्स वगैरह हमें शायद कुछ ना कर पाए, ऐसा मेरा सोचना है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आपकी क्या कॉन्शियसनेस है। तो जैसे एक स्टोरी ब्रिजेश प्रभु भी सुना रहे थे लास्ट टाइम कि एक ब्राह्मण होता है, वो नदी में जाता है और वो एक कछुए को देखता है। वो कछुआ कह रहा हूँ, एक क्रैब को निकालता है, पानी में डूब रहा होता है वो, और क्रैब उसको डंक मारता है, और वो फिर उसको निकालता है, वो फिर डंक मारता है, वो फिर डंक मारता है, पर वो ब्राह्मण हटता नहीं है, उसको निकाल के ही छोड़ता है कि पर उसको कुछ नहीं होता है। और उसकी वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, तुम अपनी प्रवृत्ति मत छोड़ो। एक चूहे से डर के या एक इंसेक्ट से डर के तो आप अपनी प्रवृत्ति छोड़ रहे हो, जो इतना पुराणों में लिखा है, आप वो छोड़ रहे हो कि मुझे कोई इंसेक्ट मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसका पालन नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि करो, जिसकी हर कोई कर भी नहीं सकता है ये, तो जिसको सुटेबल लगता है वो करे। नहीं तो और बहुत सारी चीजें हैं, अभी मेरी नेक्स्ट स्लाइड उसी के बारे में है कि और क्या क्या कर सकते हैं हम। अगर हमें वो बहुत ज्यादा लग रहा है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्यों ये वाली वाउज हैं, क्या क्या हम ले सकते हैं। वेलकम टू दैट। तो अगर वो सब चीजें ज्यादा लग रही हैं तो एटलीस्ट हम ये व्रत का पालन कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चैंटिंग करना। तो ये तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। नहीं कर सकते? नींद आती है ना। इसमें भगवत गीता में भी एक श्लोक है चैप्टर 2 में, या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति सम्मयामि। या निशा सर्वभूतानां, जो निशा मीन्स रात,
जो सर्वभूतानाम, जो सब लोगों के लिए रात है, वो सम्ययामी, वो सेल्फ कंट्रोल्ड लोगों के लिए उठने का समय है। तो ये चाहे हम, अगर हम निद्रा पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे भौतिक जीवन हो। कितने सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी जो बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी रात की नींद त्यागी है टू अचीव समथिंग विच इज मटीरियलिस्टिक। और आध्यात्मिक जगत में अगर आगे बढ़ना है तब भी तुम्हें अपनी रात की नींद त्यागनी पड़ेगी। अब हम इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया है ना, तो रात को पढ़ के ही किया ना, एंट्रेंस टेस्ट ऐसे तो क्लियर होते नहीं, खासकर इंडिया में। और आध्यात्मिक जीवन में प्रभु, अब जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की, राइट, तो ये प्रभुपाद की जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने रात भर जाग के वो बुक्स लिखी। तो अपनी रात की नींद त्याग के फिर कुछ अचीव होता है। तो अपनी रात की नहीं कह रहे हैं हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले उठ जाओ, 2 घंटे की नींद त्याग करो, और वो बहुत जरूरी है, स्पेशली इन चतुर्मास। और भी है निद्रा के बारे में तो बहुत बहुत ज्यादा वर्णन किया हुआ है हमारे शास्त्रों में। अब श्रीमद् भागवतम में भी कैंटो 2 में चैप्टर 2 में वर्णन किया हुआ है कि हम ग्रहमेधी लोग हैं, राइट, तो उनकी कैसे उनकी रात और उनके दिन कैसे जाते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंबा भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम, नक्तम मीन्स नाइट, तो रात हमारी चली जाती है सोने में, और व्यवायेन च वावयः, और हमारी संभोग में, काम वासना में चली जाती है। और दिवाचारते हया राजन, दिन जो है हमारा, ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, मतलब परीक्षित महाराज, दिवाचारते हया राजन, हे राजन, दिन जो है वो चला जाता है अर्निंग में, चारते हया राजन, और कुटुंबा भरने नवा, कुटुंबा मीन्स फैमिली, और अपनी फैमिली का भरण पोषण करने में चला जाता है। तो वही स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिपेंडिंग, इन 4 चीजों में ही हमारा सारा समय चला जाता है, और हमें चैंटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। और क्या कर सकते हैं हम? और वाओ चलो ब्रह्म मुहूर्त में ठीक है, चलो मैं कहता हूँ कि चलो गृहस्थ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भी है उठना, तो कम से कम हम सब लोग कम से कम 16 माला तो हम सब कर ही रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे चलो 8-10 जितनी भी कर रहे हो, एटलीस्ट 1 माला बढ़ा दो। वाओ लो कृष्णा भगवान के सामने सुबह जाके कि भगवान मैं ये व्रत करता हूँ कि मैं 16 कर रहा हूँ, मैं आज से मैं व्रत कर रहा हूँ, मैं इस पहले महीने में, श्रावण महीने में मैं 17 करूंगा। उसके बाद वो वाव ले ली, जो 16 कर सकता है वो 17 भी कर सकता है, जो 8 कर रहा है वो 9 भी कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, राइट। और उसके बाद करो 18, एक एक्स्ट्रा करो ताकि वो आपके नेक्स्ट मंथ के लिए आ जाए। उसमें वरा पुराण में मैं एक बात भूल गया था, उसमें भगवान वरा ने कहा था कि ये जो है, ये जो मर्सी है ना, ये हर एक महीने में बढ़ती जाएगी, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो पहले श्रावण मास में है जितनी, हर दिन ये बढ़ रही है मर्सी, और कार्तिक मास तक पहुंचते पहुंचते ये फुल फ्लो में होती है अपनी, तभी कार्तिक मास का इतना महत्व है। तो क्या करो, पहले महीने 17 का लो या जितना भी है, उससे एक ज्यादा का लो, नेक्स्ट मंथ 2 ज्यादा का लो, बेयर मिनिमम, बाकी अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार है। तीसरे में 3 लो, चौथे में 4 लो, कम से कम 20 माला हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी, जितनी भी। जैसे हमारी मैं एग्जांपल बताता हूँ, वीडियो गेम खेलते थे ना, तो वीडियो गेम में क्या होता था कि लेवल 1 खेल रहे हैं, ठीक है, लेवल 1 में हमारे पास एक बंदूक है, उससे 1 गोली जाती है, और उसी हिसाब से आगे जो ओपोनेंट है वो भी वीक होता है, वो 1 गोली से मर जाता है, ठीक है, लेवल पार हो गया। एक लेवल पार हुआ, हमें नई पावर्स मिल गई, नई गन मिल गई, और उधर से जो डीमन है वो भी, जो आगे एनिमी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो क्या हुआ, पावर्स भी बढ़ी और चैलेंज भी बढ़ा। और इसमें चतुर्मास में तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी ज्यादा मर्सी है कि वो मर्सी 1000 टाइम मिल रही है हमें, तो इट विल बी वेरी इजी कि जो आप नेक्स्ट मंथ में जाओगे तो आप बोलोगे नहीं 18 नहीं, मैं तो 20 कर लूंगा, क्योंकि मर्सी ऊपर से इतनी आ चुकी होगी
क्यों? क्योंकि आपकी एक व्रत आपका पालन हो चुका है, आपने पहले महीने में 17 कर ली है, तो हो सकता है आप अगले महीने में इतनी मर्जी मिल जाए कि आप 20 करने लग जाओ, या जितनी भी करने लग जाओ आप अपने उसके हिसाब से। तो ये है। और इजी बताता हूँ ये सारे बहुत इजी वाले हैं। दंडवत प्रणाम, मैं सॉरी नेक्स्ट पे जंप कर रहा हूँ। दंडवत प्रणाम कर लो, बोलो कि मैं हर रोज भगवान आपको 5 दंडवत प्रणाम करूंगा। चलो एक चेक हो गई कि हाँ एक भाव पूरी। 5 दंडवत प्रणाम करने में कुछ भी नहीं आता। अगले महीने 7 करो, 11 करो, जितने भी अपनी शक्ति अनुसार वो कर लो। ये आपकी एक वाव टिक हो गई, राइट। और ईट लेस। कई लोग क्या है कि इस महीने में सिर्फ 1 मील खाते हैं। अब तो वैसे ही लॉकडाउन है और हम घर पे हैं, तो आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं तो वैसे ही 2 मील्स खा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि काफी लोग 2 ही खाते होंगे, कि क्योंकि कहीं जाना नहीं है, बाहर नहीं जाना, घर रहते हैं, तो 2 से अगर 1 कर सको तो बहुत बढ़िया है। कम खाओगे तो ज्यादा रुचि रहेगी, भगवान का अच्छे से जप हो पाएगा। हम कहते हैं कि ड्रग्स है, अल्कोहल है, राइट, सिगरेट है, ये सब इंटॉक्सिकेशन है, बट अन्न, भात, दाल, सब्जी, ये भी इंटॉक्सिकेशन है। ये थोड़ी कम लेवल की है। हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं, जैसे हम कुछ खा लेते हैं हमें आलस आने लग जाता है, नींद आने लग जाती है, जो कि एक नशा है। भगवत गीता में दिया, अगेन चैप्टर 2 में बोला है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अपने विषय भोगों से मुक्त होना चाहते हैं तो व्रत करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। अगर चलो हेल्थ कंडीशन है या कुछ भी है, नहीं कर सकते, 1 बार नहीं खा सकते या 2 बार नहीं खा सकते, 3 बार ही खाना, दैट्स ओके। साथ में जो एक्सेसरीज हैं, कोई फेवरेट फूड, जैसे खाने के बाद मीठा खाना है, वो मत खाओ, कम से कम वो ही त्याग दो। गुलाब जामुन खाते हो या रसगुल्ला, जो भी पसंद है आपको, या खाने के साथ अचार खाते हो, कम से कम अचार को छोड़ दो 1 महीने में। एक आपकी व्रत पूरा हो जाएगा, भगवान को दिखेगा कि हाँ यार ये बंदा, मतलब ये नहीं है इस चीज का कि यार आपको किसी चीज खाने से रोकना है। वो पॉइंट इस सारी चीज का ये है कि यार ये मौका मिला हमें कि भगवान को दिखाने का कि हाँ भाई भगवान, हम आपको प्यार करते हैं और हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसे हम कॉलेज में थे, है ना, तो अब कई लोग देखते हैं हम, है ना, लड़के लड़कियों के लिए 2-2 घंटे पार्किंग लॉट में बैठे रहेंगे कि यार आएगी वो लड़की आएगी तो मैं उसको इम्प्रेस करूंगा। 100 चीजें करते हैं हम, क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। भगवान के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। हमें, हमारी फिलॉसफी क्या है मैं जानता हूँ, ठीक है। हमारी फिलॉसफी शुरू में क्या थी कि जब भी हम बताते थे भक्ति रिक्शा में हमने सुना है, राइट, कि हमें अपने आप को रोकना नहीं है किसी चीज से। अगर कोई दारू पी रहा है, हाँ पीते रहो, कोई बात नहीं, ये लो पकड़ो माला कर लो साथ में। बट अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हम अपने एंडेवर से एक कुछ दिखाना चाहते हैं कि भगवान नहीं, हम भी कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। अभी तक तो भगवान, अब इस स्टेज पे आ गए हम, 2-3-4 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान ही कंफ्यूज हो गए हैं यार, ये आना भी चाहता है कि नहीं आना चाहता। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को भी हमने कंफ्यूज कर दिया है कि यार, जैसे ब्रजेश्वर को लास्ट टाइम बोल रहे थे कि वो मर्सी जो है ना, शुरू में बहुत मिलती है, धीरे धीरे वो कम होती जाती है कि यार ये आना चाह रहा है, नहीं आना चाह रहा है। तो ये मौका है हर साल एटलीस्ट 4 महीने पूरा अपना, पूरी तीव्रता से अपना जो ये व्रत का पालन करो, और कम करो, चाहे जो वाव ले रहे हो, जो व्रत बोल रहे हो भगवान श्री कृष्ण को, पहले तो उनसे प्रार्थना करो कि ये जो मैं व्रत ले रहा हूँ प्लीज इसमें मेरी हेल्प करना। और दूसरा, कम करो पर कमिटमेंट पूरी करो उसमें। बोलते हैं ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो वो एटीट्यूड होना चाहिए, एंड देन यू विल सी के क्या वंडर्स होंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है मटेरियल डिटैचमेंट, चैरिटी। तो शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि इन 4 महीनों में गोल्ड दान करना चाहिए, सोना दान करना चाहिए, या उसको कुछ लोग इस तरह से भी दे रहे हैं कि कुछ भी तुम दान कर रहे हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो एक्स्ट्रापोलेट हो जाती है, वो सोना ही बन जाती है। तो कुछ दान करना चाहिए,
वो सोने के दान के बराबर है। अगर नहीं सोना नहीं दान कर सकते तो अपने घर से कम कोई चीज घर से निकाल दो। त्याग, बेसिकली रिनंसिएशन का है ये सारा टॉपिक, कि कुछ त्याग करो अपनी लाइफ में से, खाने से, मटेरियल से, कुछ भी। हमारे घर में कितना कुछ पड़ा होता है, राइट, और हम देखते भी नहीं उस चीजों को। कम से कम ये भाव ले लो कि यार पहले महीने मेरे को ये एक शो पीस है, ये उठा के मेरे को बाहर रखना है या रिसाइकल बिन में डालना है। कम से कम मुझे उस पर टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा उसकी साफ सफाई करने में। तो वो जो टाइम बचेगा उसको मैं एटलीस्ट भगवान में लगा सकूंगा। एक डिवोटी बता रहे थे कदम कन्नन महाराज की कहानी। वो कहते हैं कहानी क्या, हम लोग एक उनके साथ जो लाइव उनके साथ घटना हुई है। तो उन्होंने बोला कि वो उनको लेने गए एयरपोर्ट पे और उन्होंने कार में पिकअप करने गए थे। तो कार में उन्होंने बैग रखा उनका, वो कुछ 6-8 किलो का बैग होगा। और उसके बाद वो वेट कर रहे थे कि अभी कोई और वो आए थे, अफ्रीका से आए थे, तो अभी उन्होंने क्या 20 किलो का कुछ बैग आएगा, तो आया नहीं। तो उन्होंने कदम कन्नन महाराज आ गए और उन्होंने बोला कि चलो चले। तो कहते मैंने पूछा कि आप क्या बस ही है इतना 8 किलो का बैग? तो कहते हैं और क्या 8 किलो? कहते मैं तो हर साल कोशिश करता हूँ कि 8 से 7 हो, 7 से 6, उसको कम करने की कोशिश करता हूँ, अपनी जरूरतें बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वो सन्यासी हैं, हम गृहस्थ हैं, उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा। बट श्रीला प्रभुपाद ने कहा है कि ये जो व्रत हैं चतुर्मास में, ये सभी वर्ण और आश्रम के लिए जरूरी है। इट्स नॉट ओनली फॉर सन्यासी। तो हम उस लेवल का नहीं जा सकते, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि घर से कोई चीज जो नहीं यूज हो रही, कम से कम उसको निकाल के बाहर फेंके। कम से कम हमें, चलो घर में नहीं, गराज में तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा जो कि हम बाहर रख सकेंगे। और उससे क्या होगा, हमारी एक वाव पूरी हो जाएगी कि हाँ हमने ये कर दिया। चाहे हाउ स्मॉल इट इज, इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपने वो सच्चे मन से किया और कृष्ण भगवान को बोल के किया कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ। और आपकी एक वो मर्सी बढ़ेगी जितनी वाव्स आप पूरी करो। जरूरी नहीं है कि हमने सब सारी वाव्स करनी है, मैंने तो लिखी भी नहीं है सारी, बहुत सारी है जो और भक्त लोग करते हैं। और एग्जाम्पल, हम जितनी चीजें हमारी घर में होंगी ना, उनको मेंटेन करने के लिए उतना ही हमें चाहिए। हम तो पहले ही बड़े घर में रह रहे हैं, तो उसको मेंटेन करना पहले ही हमारे लिए हेडेक बनी हुई है। सॉरी टू से, बट अब जैसे स्वर्ण किशन प्रभु हैं, सॉरी टू पुट यू ऑन स्पॉट प्रभु जी, बट वो छोटे घर में गए हैं, मंदिर के पास गए, उनके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो प्योर डिवोटीज की एसोसिएशन मिल रही है उनको मंदिर की वो सर्विस का सब कुछ मिल रहा है। बट ऑन टॉप ऑफ इट ये भी है कि घर छोटा है, उसको मेंटेन करने में कम टाइम लग रहा है उनको, तो वो भागवत में, सर्विस में और 100 चीजों में वो अपना टाइम लगा पा रहे हैं। तो अगर हम वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम अपने घर में से कुछ निकाल सकते हैं इस महीने में। नेक्स्ट वन इज रिमेन ट्रूथफुल, नो प्रजल्पा। ये बहुत मुश्किल हुआ है, ये नहीं हो सकती, बट फिर भी कोशिश करो कि जितनी हो सके इन 4 महीनों में कम से कम प्रजल्पा करो। मेरा फ्रेंड है ऑफिस में, वो मुस्लिम है, तो वो रोजे रखता था। तो लास्ट ईयर उसने रोजा रखा, तो उसने, हम जैसे ऑफिस में बात करते हैं, तो उसने बोला, मैंने उसे ऑफिस की बात करी कुछ कि यार वो बंदा तो ऐसा है, हम जैसे नॉर्मली हम बिचिंग करते रहते हैं। तो उसने बोला, कहता है निशांत मेरे ना रोजे चल रहे हैं। तो कहता है ये रोजा सिर्फ अपना पेट का नहीं होता, ये कानों का, आंखों का और जुबान का, इन सब का रोजा होता है। मैं इतना इम्प्रेस हुआ उसकी बात से। और ये सेम हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है ना, अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, वाचो वेगम, जीवा वेगम, मनसा क्रोध वेगम, उदरोपस्थ वेगम, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे पे भी हैं। और मुझे चतुर्मास क्या यही नहीं पता था आज से 2 साल पहले, जब तक मेरे को इंडिया में पता ही नहीं था। जब ऑस्ट्रेलिया में तब मुझे पता चला कि चतुर्मास होता क्या है। और रोजा देखो, पूरी दुनिया मनाती है रोजा, और उनका भी सेम फिलोसफी है। देखो वो 45 डेज रखते हैं, हमारे चलो दिन ज्यादा है, 120 है, वो भी दिन में एक बार ही खाना खाते हैं। और हमें भी यही बोला गया कि एक बार खाना, और हमारे लिए वो इतना मुश्किल हो गया। और हर दूसरा मुसलमान कम से कम रख रहा है रोजा, 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है। तो थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है
और रिलीजन से भी कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऑलराइट, एनीवे, तो और इसमें कहा गया था कि प्रजल्पा पे कि अगर आप प्रजल्पा नहीं करते हो तो एक बेनिफिट क्या मिलता है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो ओबे होते हैं। जस्ट मटेरियलिस्टिक बेनिफिट है कि कुछ भी आप बोलोगे तो वो माने जाएंगे। जस्ट मैंने नोट किया वाला पॉइंट तो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है हरि कथा। तो हरि कथा सुननी चाहिए, करनी चाहिए इस टाइम में। ठीक है, हमारी ये क्लास होती है एक फ्राइडे तो वो हो जाती है, बट इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ब्रजेश प्रभु ने दी हुई है लीलामृत पढ़ने की, हर रोज पढ़ते हैं। और वो तो मतलब ऐसे है कि प्लेटर पे ला के आप प्लेट के सामने खाना रखा हुआ है आपके सामने और आपने उठा के खाना, अगर आपने खुद से उठा के नहीं खाना ना, वो ब्रजेश प्रभु खुद से डाल रहे हैं हमारे मुंह में। वो कहते हैं आप ज्वाइन कर लो, आपने मत सुनो, बोलो मत, कुछ मत करो, अपना कुछ काम कर रहे हो, एटलीस्ट 2, 4, 5 शब्द कुछ तो कान में पड़ेंगे, वो कर लो। तो वो हर यही लिंक है जूम का, सेम लिंक है, तो अगर वो ज्वाइन करो तो उससे भी हमारी वो प्रगति और होगी, और खासकर एटलीस्ट इन चतुर्मास। नेक्स्ट है घी लैम्प की। हम सबको पता है कि दिया जलाते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जलाते भी होंगे। कार्तिक मास में तो बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो बट ये चारों महीनों में चलाओगे और तुलसी की सेवा करोगे और घी का दिया जलाओगे तो अगेन बहुत बहुत ज्यादा मर्सी मिलेगी। फिर है धाम यात्रा। तो धाम यात्रा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अब तो खैर कोविड है तो नहीं कर सकते, पर अगर तो प्रथा तो ये है कि 4 महीने वहीं रहना धाम में। अगर नहीं रह सकते तो कम से कम 4-5 दिन लगा के आ जाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मंदिर में तो जा ही आओ हर रोज चतुर्मास में। ये थी। और नेक्स्ट पे आते हैं हम फेस्टिवल्स पे। जितने भी फेस्टिवल्स हैं, मेजर फेस्टिवल्स अगर आप देखो तो वो चतुर्मास में ही आते हैं। और अगेन मैं वही आऊंगा कि दोबारा से कि रेनी, ये जो टाइम है ये रेनी सीजन होता है ना, सनलाइट बहुत कम होती है, क्लाउडी होता है, और ये सब कुछ हमारा जो है ना, और अब तो खासकर लॉकडाउन में, कोविड में, तो ये हमारा जो तमस का कंपोनेंट है वो बहुत बड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें सनलाइट नहीं दिख रही है। अभी भी देखो क्लाउडी रहता है, मेलबर्न में भी हाल है। तो उसको काउंटर करने के लिए सारे फेस्टिवल्स डाले गए हैं उसमें। उत्साह, जितना उत्साह, जितना उसमें उपवास करोगे, फेस्टिवल्स में हम उपवास भी करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत होता है, ठीक है, बलराम जयंती का, बलराम पूर्णिमा पे हमारा इवनिंग तक व्रत होता है, वो सब करो, उससे हमारा सत्व कंपोनेंट इंक्रीज होगा और उत्साह से, हर्षोल्लास से हम सेलिब्रेट करेंगे। तो अगेन वन ऑफ द मर्सी है, राइट, इन दीज 4 मंथ्स। तो बलराम पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, झूलन यात्रा है, राधा अष्टमी है, एंडलेस है, दिवाली, बेचारा, सब कुछ इन्हीं 4-5 महीनों में आता है। और प्रभुपाद से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर आप इतना कुछ करते हो, ऑस्टेरिटीज करते हो, ये कृष्णा का नाम लेते हो, ये सब कुछ करते हो, तो बाद में आपको पता चले कि कृष्णा तो है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि चलो ठीक है, हम नहीं करते, हमें बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें पता चलेगा कि कृष्णा नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम सारा साल तो हम फेस्टिवल ही तो मना रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसादम खा रहे हैं, हम अपनी पूरी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति। अगर हम भौतिक नहीं कर रहे हैं बट आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति तो पूरी हो रही है हमारी। किस चीज से वंचित है हम? प्रसादम पूरा खाते हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज है। कहते हैं मैं पलट के क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने सब कुछ कर लिया और हमने तो नहीं किया, तुमने जो भी तुम कर रहे हो वो कर लिया, और बाद में तुम्हें पता चलता है कि यार वो तो है कृष्णा, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तो ये चीज है। एनीवेज, अब आते हैं हम अपनी लास्ट सेक्शन में, थोड़ा सा रह गया, मैं क्विकली कवर करता हूँ। इस चतुर्मास में, ये चतुर्मास कुछ स्पेशल है। तो इसमें क्या स्पेशलिटी है, कोई गेस करना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा?
हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल माता जी। कोविड है प्रभु जी, हम अपनी साधना पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल, अधिक मास है प्रभु, अधिक मास है इस बार। राइट 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 जी। राइट, पुरुषोत्तम मास है। कोविड है, वो तो बिल्कुल ही सही बात है, उससे तो हमें एक्स्ट्रा बूस्ट मिल ही रहा है तभी हम उसके सेवा कर रहे हैं घंटे। और दूसरा है कि पुरुषोत्तम मास, महीना भी कहते हैं प्रभु जी, लॉन्ग का महीना भी कहते हैं उसको। हाँ राइट राइट। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। कहते हैं उसको, दिन बढ़ जाता है। राइट राइट राइट। अच्छा जी, तो हाँ जी, मैंने बता दिया वैसे। राइट राइट, अब आपकी ठीक आ रही है आवाज। राइट, तो इसमें पुरुषोत्तम मास आ रहा है, जो कि बहुत रेयर होता है कि वो चतुर्मास में आए, कम होता है, आता है। जैसे अब पिछला, और ये आता है 3 साल बाद आता है ये। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ मैं। ऑलराइट, तो व्हाट इज पुरुषोत्तम मास नाउ? इसको अधिक मास भी बोलते हैं, इसको मल मास भी बोलते हैं, जैसे यहाँ ने बोला उसको अधिक मास बोलते हैं। और क्या है, ये सबसे ऑस्पिशियस मंथ माना गया है। इवन कार्तिक मंथ, जो वन ऑफ द बेस्ट जिसमें हम इतना करते हैं, वो कार्तिक मंथ से भी ऊपर पुरुषोत्तम मास को माना गया है। बोलते हैं कि 16 व्रत अगर हमने कार्तिक मास के रखे हैं और एक व्रत अगर हमने पुरुषोत्तम मास का रख दिया तो वो बराबर है। चलो पहले मैं बताता हूँ कि कार्तिक ये पुरुषोत्तम मास है क्या। हमारा ये एक हमारा लूनर ईयर चल रहा होता है और एक सोलर ईयर चल रहा होता है। तो एक चंद्र के हिसाब से होता है और एक सूर्य के हिसाब से होता है। तो चंद्र का जो साल होता है ना, वो छोटा होता है, वो 354 डेज में खत्म हो जाता है। और जो सोलर है वो तो हमें पता है 365 डेज रहते हैं। तो हर साल ये 10 दिन का गैप हो जाता है। तो इन दोनों को मैच करने के लिए कि दोनों साल सेम रहे, तीसरे साल में हम एक अधिक मास डाल देते हैं ताकि वो दोनों कैलेंडर सेम रहे, 12 महीने रहे उनमें। तो अब ये जो अधिक मास अब इस साल में वो 13 मास आएंगे अब। तो जैसे इस साल अब ये अश्विन में आ रहा है, जो कि पड़ रहा है हमारा चतुर्मास में। पिछली बार ये आया था 2018 में, तो ये आया था मई जून में आया था, नाम भूल गया उनका। तो ये चतुर्मास में नहीं था। तो इस साल ये एक्स्ट्रा 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 मर्सी है। तो अब थोड़ा सा मैं इसमें टच अपॉन करूंगा कि क्या है इसकी स्टोरी, क्या है पुरुषोत्तम मास की। तो नारदीय पुराण में इसका वर्णन है 31 चैप्टर में कि आदि मास करके जो एक्स्ट्रा मंथ था पर्सोनिफाइड। तो पर्सन ये आता है, ये अपने श्री नारायण के पास आता है वैकुंठ में और बोलता है कि सब लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि यार तू तो एक्स्ट्रा मंथ है, 12 महीने से ऐसी तू पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तू इम्प्योर है, तू मल है। दे कंपेयर दिस मंथ टू अ स्टूल। तो मल मास भी बोलते हैं इसको। तो बहुत दुखी होता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल। वो उनको लेके जाते हैं गोलोका वृंदावन कृष्णा के सामने, और कृष्णा को भी फिर वो आदिमास अपनी कहानी सुनाता है और वो बोलते हैं कृष्ण भगवान के मैं तुझे अपना नाम देता हूँ, तू पुरुषोत्तम, आज से तुझे पुरुषोत्तम मास कहेंगे, जैसे मैं अपनी सारी क्वालिटीज तुझे देता हूँ। हमने भक्ति विषय में देखा होगा कि भगवान है ना किसको बोलते हैं, कि कौन सी हमारी भगवान की किसी को याद है कौन सी 6 क्वालिटीज जो हैं, ऑपुलेंसेस, 6 ऑपुलेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो सारी ऑपुलेंसेस उन्होंने इनको दी है। तो बताना चाहेगा कौन सी ऑपुलेंसेस हैं, याद है किसी को? स्ट्रेंथ, राइट, ब्यूटी, राइट, और कोई बताना चाहेगा? रिनंसिएशन, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, राइट। एक रह गई है, दैट्स नॉलेज। नॉलेज। तो
ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम और रिनंसिएशन। तो ये 6 चीजें हैं जो कि भगवान में फुल हैं, उनसे ऑप्युलेंट हैं इन चीजों से, इन 6 चीजों से। तो उन्होंने वो सारी की सारी 6 चीजें पुरुषोत्तम मास में डाल दी। तो ये तो अगेन मैं वीडियो गेम की एग्जांपल लूंगा कि उसमें 3-4 लेवल करने के बाद एक बोनस वाला राउंड आता होता था, छोटे छोटे जब खेलते थे हम, है ना। तो उसमें बोनस ही बोनस मिलता था, उसमें किसी को मारना नहीं होता था, थोड़ा सा कुछ करो और बोनस पॉइंट्स, बोनस पॉइंट्स। तो ये वो वाला नहीं है, इसमें सिर्फ मर्सी और मर्सी ही है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट इज कमिंग इन द चतुर्मास। तो एंडलेस मर्सीज हैं इसमें। तो लास्ट स्लाइड है। कौंडल्य मुनि इसमें बोलते हैं कि ये वाला मंत्र अगर बोलोगे तो बेनिफिट्स मिलेंगे। वो ये वाला मंत्र बहुत बोलते थे, गोवर्धना धरम वंदे गोपालम गोपर रूपिणम गोकुल उत्सवम ईशानाम गोविंदम गोपिका प्रियम। I worship Gopal, the lifter of Govardhan, who has the form of a cowherd boy. He is the festival of Gokul, the supreme controller of all. He is Govinda and beloved of Gopis. तो यह मंत्र अगर कोई चैंट करना चाहे तो पुरुषोत्तम मास में कर सकता है। और पुरुषोत्तम मास में अगर व्रत का पालन कर सकते हो अच्छे से तो और बढ़िया है। हमें उससे पहले 2 महीने मिल रहे हैं हमें वार्म अप के लिए और एक्स्ट्रा मर्सी लेने के लिए, ताकि हम पुरुषोत्तम मास में फुल फ्लो में अपने फुल तीव्रता से अपने व्रत का पालन कर सकें। एंड में बस इस सब चीजों का गोल यही निकलता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में ये मेंशन किया गया है, द रियल पर्पस बिहाइंड द वाव टेकन ड्यूरिंग दीज 4 months is to minimize the quantity of sense gratification. This is not very difficult. So the whole point here is कि अगर हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को रोकेंगे, और इन 4 महीनों में वो रोकनी बहुत आसान है क्योंकि एक्स्ट्रा मर्सी मिल रही है। So and that's why it's not very difficult. और उसके बाद वो जो टाइम हमें बच रहा है उसको एंगेज करेंगे फिर हम कृष्ण भक्ति में, एंड विल गो बैक टू गॉड हाइट। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेश्चन है, कोई अपना शेयर करना चाहेगा कि क्या है? स्पेशली स्वर्ण किशन प्रभु या विजेश प्रभु बताएंगे कि वो और इंस्पायर कर रहे हैं हमें कि उन्होंने लास्ट ईयर या इस ईयर क्या क्या ऐसा वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले और हम भी कर सकें चतुर्मास में। हरे कृष्णा। निशांत प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हेलो, हाँ जी, ये जो पुरुषोत्तम मास की आपने बताए हैं 6 जो 6 से बताए हैं, ड्यूटी, स्ट्रेंथ, नॉलेज, तो इनको थोड़ा सा विस्तार से और बता देंगे? ये जो बताई हैं आपने 6 पार्ट्स ऑफ पुरुषोत्तम मास। तो इसमें पार्ट्स नहीं बताए हैं, इसमें क्या है कि वही बताया कि उस मास में अगर जो बंदा व्रत का पालन करेगा उसको ये सब 6 चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने कहा कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये 6 मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने इस मंथ में डाल दिए हैं। तो जो ये करेगा उनको ये सब चीजें, ब्यूटी, उसकी ब्यूटी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी, फेम बढ़ेगा, सब कुछ उसका वो बढ़ेगा अगर वो इन व्रतों का पालन करेंगे। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी एग्जांपल्स थी और कि आप अगर तेल लगाना छोड़ दोगे अपनी बॉडी पे, या तो आप तेल लगाते हो तो आप कुरूप नहीं होगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि वो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं बेसिकली, कि अगर आप वो ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। तो बस हमारा, जैसे मैंने बताया कि गोल हमारा यही है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से हटके हमें एंगेज करना अपने माइंड और सेंसेस को टुवर्ड्स भक्ति, टुवर्ड्स चैंटिंग, टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ राउंड्स। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, निशांत प्रभु जी, एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। बोलिए। हाँ जी, वो ये है कि जो आप कह रहे हो मल मास होता है,
अभी आपने बताया पुरुषोत्तम मास होता है, जो मल मास होता है, ये जैसे हमारे देसी महीने हम देखते हैं अपने कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में, वैदिक कैलेंडर में, तो उसमें ये मास किस नाम से आता है? अधिक मास से आता है, जैसे मैंने बोला ना कि नाम अधिक अश्विन, कोई पर्टिकुलर नाम है? हाँ नाम ही है ये, अश्विन, श्रावण, अश्विन, ये अश्विन मास होता है जो अधिक नहीं, मास। इस साल ये अश्विन में आ रहा है। ये हर साल डिफरेंट उसमें आता है। जैसे मैंने बताया कि 2018 में ये मई जून में आया था, तो उसको अधिक वो बोलेंगे जिसमें भी आता है। तो जैसे मैंने, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, अगर ये देखो, इसमें जैसे श्रावण जो है ये 1 महीना है, जुलाई से अगस्त। भाद्रपद जो है वो 3 अगस्त से 1 सितंबर है। अश्विन देखो अगर आप 2 सितंबर से 30 अक्टूबर, तो ये 2 महीने हैं। अच्छा, तो ये चतुर्मास नहीं बन गया, ये पंचमास बन गया एक तरह से। तो ये पहला पार्ट है इसका अश्विन, और दूसरा पार्ट है अधिक अश्विन से ही आएगा मतलब? नहीं, हर बार ये ऐसा नहीं है। ये कार्तिक, अगर हो सकता है ये अगली बार कार्तिक में आए। कार्तिक में ये 140 साल बाद कार्तिक में आता है, वो अधिक कार्तिक कहते हैं। तो उसकी और महत्ता है जब ये अधिक कार्तिक बन के आता है, क्योंकि कार्तिक मास हमें पहले ही पता है कार्तिक की कितनी महत्ता है। तो अधिक अश्विन है, ये अधिक अश्विन वाला है। अच्छा जी, हाँ, ये इस साल जो है ये अश्विन में है। हाँ, तो ये अधिक अश्विन में आएगा, राइट। इस साल ये अधिक अश्विन में आ रहा है। तो प्रभु थैंक यू प्रभु जी। अश्विन मास में आ रहा है तो इसीलिए अधिक अश्विन बोल दिया उसको। राइट, इस बार अश्विन में आ रहा तो इसलिए अधिक अश्विन बोल दिया। हाँ जी, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन, कोई रियलाइजेशन शेयर करोगे? जी, ब्रिलियंट क्लास। मेरे को तो आई थिंक मेरे को तो बहुत इंस्पिरेशन मिली इस क्लास से, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पूरा चतुर्मास करने का, लेकिन आज की क्लास के बाद मेरे को काफी इंस्पिरेशन मिला है। एंड आई थिंक मैं डेफिनेटली फॉलो करने वाला हूँ इस बार, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पता था, लेकिन आपकी क्लास के बाद थोड़ा सा ज्यादा मेरे को लग रहा है, क्योंकि कार्तिक मंथ तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन चतुर्मास यूजुअली हो नहीं पाता है। लेकिन इस बार आपकी क्लास के बाद जरूर करूंगा। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस। थैंक यू। हेलो हाँ जी, बहुत अच्छी क्लास, वेरी इंस्पायरिंग गुरुजी, निशांत प्रभु, बहुत अच्छा आपने बताया। कुछ एक सिंपल चीजें भी हम अगर कर लें तो, जैसे बेसिक सी, उनसे भी प्रभु की कृपा मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। आपने बहुत ही इंस्पिरेशनल क्लास थी। बस एक पॉइंट मेरे माइंड में कभी कभी आता है कि हम संक्रांति से मंथ गिनते हैं नया, तो पूर्णमासी से क्यों 3 जुलाई आपने बोला, या 5 जुलाई आपने कुछ बोला था ऐसे, कि 5 जुलाई से सावन स्टार्ट है, वो संक्रांत से या संक्रांति से, या कि वो 5 जुलाई से? हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से संप्रदाय से हो। अब ये हर एक लोग, मैंने कहा है कि इसमें कोई गलत नहीं है। कई लोग एकादशी से एकादशी करते हैं, पूर्णिमा से पूर्णिमा कर लो, या संक्रांति से संक्रांति कर लो, डजंट मैटर एज लॉन्ग एज। पर ये नहीं है कि आप एकादशी से शुरू करके पूर्णिमा पे खत्म करो। एकादशी से शुरू किया तो एकादशी पे खत्म करोगे, पूर्णिमा से शुरू किया तो पूर्णिमा पे खत्म करोगे। ठीक, थैंक यू। Anything else? और कुछ? और कोई अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहेगा, अपने बारे में, कि वो कैसे फॉलो करते आए हैं अभी तक, या क्या उनको लगा कि वो कर सकते हैं इस साल? प्रभु मैंने अभी निशांत प्रभु की क्लास सुनने के बाद मैं अभी सोच रहा था कि प्रभु ने बोला ना कृष्ण कथा, तो मैं सोच रहा था कि फॉर दिस 4 months
मैं सोच रहा हूँ I will try and have listen to one Prabhupada lecture every single day, at least one, you know, just for these 4 months. And I think मैं बहुत टाइम से सोच रहा था ऐसा करने की, लेकिन वो होता है ना कि संकल्प नहीं लिया होता है, तो कभी करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा. लेकिन अभी क्योंकि ये मौका है और you know अभी थोड़ा इंस्पिरेशन भी है निशांत प्रभु की क्लास के बाद, so मैं सोच रहा हूँ कि I will do that, you know, so that I can get some extra mercy from Prabhupada. बहुत अच्छा. Fantastic. It's very good, great that you say that, you know, we have to be greedy for mercy, you know, we have to be greedy for the mercy, because जब तक हम greedy नहीं होंगे, we will not put in the required endeavor, you know, required effort. See, usually मैं क्या करता हूँ अभी, you know, last year मैंने similar class attend की थी, क्या प्रभु का नाम, अमरेंद्र प्रभु की क्लास अटेंड की थी टेम्पल में चतुर्मास में. आई रिमेम्बर अपना काफी लोगों ने, आप लोगों ने भी अटेंड की थी. आई नो दैट आशीष प्रभु भी आए थे अपने फादर को लेकर उस क्लास में. सो जब मैंने वो अटेंड की थी क्लास, चतुर्मास पे थी, तो तब से मैंने डिसाइड किया था कि यू नो मैं एक्स्ट्रा चैंटिंग करूंगा डेली. तो मैंने तब से क्या हुआ कि वो 4 महीने तो की ही की, पर वो 4 महीने के बाद भी I then decided somehow, you know, it just became a habit. So I've been doing those extra rounds, you know, ever since. So इस चतुर्मास में मैंने वो चैंटिंग तो चली रही है, वो इंक्रीज राउंड जो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुए थे, लास्ट जून जुलाई से, जब जुलाई अगस्त से जब भी लास्ट ईयर चतुर्मास बिगिन हुआ था. इस साल what I have realized when I introspected, one of the things which I'm lacking is that not enough reading. So you know, so I have decided that and not decided, I have been consciously working on my reading, lack of reading rather, you know. So मैंने ये सोचा है कि मैं चतुर्मास में, which I have been doing for the past, ever since the month has begun, for the past, you know, 3-4 days, every day I will read for some time, you know, if nothing, you know, anywhere between 15 minutes to half an hour, you know. So we should pick up on, identify our weak areas, weak areas, and the areas that we want to develop in. तो उन एरियाज को डेवलप करके हमें, उन एरियाज, जिन एरियाज को हमें डेवलप करना है, उन एरियाज के बारे में हम प्रण लेके इस मंथ में फोकस करेंगे, तो गॉड लॉर्ड भगवान हम देखेंगे हमारा सिंसियर एंडेवर उनकी तरफ आने का, और देन वी गेट मोर मर्सी, यू नो. जब हमारी तरफ, जब बच्चा, एक अपना छोटा बच्चा, इन्फेंट, यू नो, अपनी तरफ हाथ करता है, तो कैसे माँ बाप को या अपने पेरेंट्स की तरफ हाथ करता है, या यू नो जेस्चर करता है पेरेंट्स की तरफ जाने का, तो पेरेंट्स कितना खुशी से उसको, यू नो, अपनी दोनों बाहें खोल के उसको अपनी तरफ बुलाते हैं. तो सेम चीज हम जब ये सब चीजें करते हैं ना, it's showing the same gesture, you know. Yeah. Right. बहुत बढ़िया प्रभु जी, thank you for the inspirational words. Wonderful class, Prabhuji. Thank you. Well done. I'm very, very pleased. I'm sure Prabhupada will be pleased with your efforts. Thank you, Prabhu. Wonderful class. Thank you. Very good class, Prabhu. Thank you, Prabhu ji. निशांत प्रभु की जय. जय. प्रभुपाद की जय. प्रभुपाद की जय. निशांत प्रभु की जय. निशांत प्रभु की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Prabhu, should we end here or what do we do? Yes, Prabhu. I think Nishant Prabhu has to end because I can't do it from my side because he is the host. क्या ऐड करना? नहीं, end अगर आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा because I can't end it because you are the host. ब्रजेश प्रभु, कल मॉर्निंग में. Yes, प्रभु. कल मॉर्निंग में चैंटिंग सेशन है. Yes, प्रभु, every day.
7 days। हाँ मैं सोच रहा हूँ अब वीकेंड में भी मॉर्निंग में ही स्टार्ट करूँ। यस प्रभु प्लीज आइए ना। कल मिलते हैं सुबह। चलो ठीक है प्रभु। हरे प्रभुपाद की जय। हरे